اماں میں کہہ رہی ہوں میں کبھی شادی نہیں کروں گی، مجھے شادی سے ڈر لگتا ہے۔ ملائکہ کا لہجہ بلند تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر وہ ہچکچاہٹ صاف دیکھی جا سکتی تھی جو اکثر وہ محسوس کرتی تھی جب کبھی اس کی زندگی میں شادی کا نام لیا جاتا۔ اماں نے ہمیشہ کی طرح پہلے پیار سے سمجھایا، پھر جب وہ نہ مانی تو آواز میں سختی درائی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ کیا ساری زندگی میں زندہ رہوں گی یا تیرا باپ، تیرے بھائیوں کی بیویاں آج ہماری موجودگی میں لحاظ کر رہی ہیں، کل کو ہم نہ رہے تو کسی کو تیرا خیال تک نہیں آئے گا۔ بہن، جھکجھائی نہ کرا، بس چپ چاپ تیار ہو جا۔ ملائکہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی خاموشی میں کئی الجھنیں تھیں، جیسے لفظوں کی بجائے دل چیخ رہا ہو۔ لڑکی جو ظاہر سب سے ضدی تھی، حقیقت میں یہ سب سے زیادہ حساس تھی۔ وہ 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، سب کی لاڈلی، سب کی چہیتی، لیکن دل میں چھپی وہ ایک انجانی سی گھبراہٹ ہمیشہ اسے خاموشی سے چبا جاتی۔ اس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جہاں ہر شخص اپنا بوجھ خود اٹھاتا تھا۔ ہر بھائی کی اپنی الگ دنیا تھی، مگر سب ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے۔ 8 مرلے کا وہ 2 منزلہ گھر، جو اس کے ماں باپ کی ساری زندگی کی محنت کا نتیجہ تھا، جہاں ہر بھائی کو ایک ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ وہی گھر جہاں کبھی کرائے کی جھمیلوں نے ان کا سکون چھین لیا تھا، اب ان کے سکون کی آخری پناہ گاہ تھا۔ ماں باپ نے اپنی سے کوشش کی کہ بہوئیں بھی اپنے خاندان چلائیں تاکہ گھر کا ماحول بگڑنے نہ پائے، اور شاید اس لیے سب بہوئیں بھی ایک حد تک شرافت سے پیش آتی، کم از کم ماں باپ کے سامنے تو ضرور۔ ملائکہ کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں اسے محبت تو ملی مگر وہ تحفظ نہیں جو وہ خود سے ڈھونڈتی تھی۔ بھابیاں جو آج اسے بیٹی جیسا مانتی تھی، وہی کل کو شاید پلٹ جائیں، اور یہی خیال اسے اندر ہی اندر کھا جاتا۔ وہ 20 سال کی ہو چکی تھی، اور جب سے ہوش سنبھالا تھا اس نے شادی شدہ عورتوں کو زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ بھابھیوں کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹیں اور تھکے تھکے دلوں کے بوجھ وہ صاف محسوس کر لیتی، جیسے شادی کا خیال اسے خوفزدہ کر دیتا۔ وہ خود کو ایسی زندگی میں قید ہوتا محسوس کرتی جہاں اس کی مرضی کی کوئی وقت ہی نہ ہو۔ اس نے کئی رشتے رد کر دیے تھے، چاہے وہ کتنے ہی اچھے خاندان سے آئے ہوں۔ اس کے دل کا دروازہ بند تھا، لیکن اب شوکت علی، اس کے والد، جنہوں نے ہمیشہ بیٹی کے نخرے برداشت کیے تھے، اس بار خاموش نہ رہ سکے۔ انہوں نے اماں سے 2 ٹوک لہجے میں کہا، اب بس بہت ہو گیا، اسے سمجھا دو، اب اس کی عمر ہو گئی ہے۔ سب بیٹیوں کی شادیاں تو ہم نے 18 سال کی عمر میں کر دی تھی، اب بیٹی کو کب تک بٹھا کے رکھیں گے؟ ان کی آنکھوں میں تشویش اور لہجے میں فیصلہ سنانے کی سختی تھی۔ ملائکہ نے یہ سب سنا، لیکن اس کے دل میں ہول اٹھا، جیسے وہ کسی اندھیرے غار میں داخل ہو رہی ہو، جس کی کوئی روشنی، کوئی امید، آواز ساتھ نہ دے رہی ہو۔ بس ایک تنہائی، ایک بے بسی جو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار وہ مان ہی گئی، بہت ضد، بہت آنسو، بہت ڈر کے بعد، جیسے اس کے اندر کی ہار ماننے والی لڑکی نے سر جھکا لیا تھا، جیسے وہ اس شور میں اپنی آواز گنوا بیٹھی تھی اور خاموشی سے ہاں کر دی تھی۔ اس کی شادی خاندان کے سب سے خوبصورت لڑکے وجاہت سے طے پائی، وہی وجاہت جس کے ماتھے کی شرافت، آنکھوں کی گہرائی اور انداز کی نرمی سب کو متاثر کرتی تھی۔ سب بہنیں، بھابھیاں، محلے والیاں، یہاں تک کہ اس کی سہیلیاں بھی کہہ رہی تھیں کہ ملائکہ کا نصیب جاگ اٹھا ہے۔ لیکن ملائکہ، وہ جو سر جھکائے سب کے درمیان دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ایک نئی نویلی دلہن کے ہونی چاہیے، جیسے کوئی خوف اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہو، جیسے وہ رو رہی ہو لیکن کسی کو سنائی نہیں پا رہی۔ وہ اپنی شادی پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، روایتی گہرے سرخ جوڑے میں، سنہرے کامدار دوپٹے میں لپٹی ہوئی، آنکھوں میں سرما، ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک، مگر چہرے پر ایک ادھورا سا سکون۔ وجاہت بھی دلہا بن کر جیسے شہزادہ لگ رہا تھا، سفید شلوار قمیض اور میرون شیروانی میں۔ خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی، لیکن اس کی نظریں ملائکہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بارات والے دن صبح ہی سے ملائکہ کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا، جسم بے جان لگ رہا تھا، اور پھر شام سے پہلے ہی اس کی طبیعت
बुरी तरह बिगड़ गई। डेट आ गई। अम्मा तो जैसे परेशान होगी, दिल पर हाथ रख के बैठ गई। या अल्लाह, ये क्या दिन चुन लिया इसने बीमार होने के लिए। ये शादी की रात है, बारात लेकर लोग दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन मलाइका, वो तो अंदर ही अंदर जैसे शुक्र अदा कर रही थी। उसे तो सुकून मिला था कि वो आज की रात कुछ भी ना करेगी, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए अपनी भाभीयों से सुन रखा था कि शादी की पहली रात कैसी होती है, कैसे वो रात नई नवेली दुल्हन की नींद, सुकून सब कुछ छीन लेती है, कैसे वो एक खौफ, एक अजनबियत और एक जिस्मानी अजियत में ढल जाती है। और इस खौफ ने उसे कई महीनों से निढाल कर रखा था। उस रात वो दुल्हन बनी मगर जैसे एक बोझ हट गया हो, एक बहाना मिल गया हो खामोशी से बच निकलने का। और वही खामोशी उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून बनकर फैली थी, तो शायद किसी को समझ ना आए, मगर वो खुद बहुत गहरी सांस लेकर अंदर ही अंदर खुश थी। मलाइका की माँ ने सब मेहमानों से नजरें चुराकर फरजाना बेगम को एक तरफ बुलाया और आहिस्ता से उनके कान में छुपकर वो बात कही जो उनके लिए कहना भी शर्मिंदगी से खाली न था। बाजी, हमारी बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। असल में उससे माहवारी शुरू हो गई है। हमें 7 दिन के लिए वलीमा मौखर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मियाँ बीवी का मिलाप ना हो वलीमा शरन हलाल नहीं होता। फरजाना बेगम ने पहले तो चेहरे पर हैरत और फिर नापसंदीदगी का हल्का सा साया लाया, जैसे उन्हें ये अचानक बात कुछ हजम ना हो रही हो। माथे पर बल आए, आंखों में हल्की सी नागवारी झलकी, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाला, गहरी सांस लेकर सर हिलाया और मध्यम आवाज में बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से है, मैं वजाहत को समझा दूंगी, आप फिक्र न करें। उनके लहजे में वक्ती नाराजगी तो थी, मगर वो बात को समझ गई थी। वो जानती थी कि कुछ मामलात इंसान के बस में नहीं होते, और ये भी कि ऐसी सूरत हाल में बहू को बुरा समझने से ज़्यादा बेटे को समझाना ज़रूरी था। रुखसती मुकम्मल हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, रोशनियों से जगमगाता वो घर अब कदरे खामोश हो चुका था और दुल्हन के कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मलाइका सुनहरे दुपट्टे में लिपटी सजे हुए बेड पर बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर वो घबराहट बाकी थी जिससे वो दिन भर लड़ती रही थी। वो जानती थी कि अब वो एक नए सफ़र में दाखिल हो चुकी है, लेकिन आज की रात का बोझ उसके कंधों से उतर चुका था। वो सुकून की सांस ले रही थी। उसे अपनी हालत पर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल कर रहा था। इधर वजह जो भी कमरे के बाहर खड़ा था, उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। बेटा, मलाइका की तबीयत खराब है, अभी कुछ दिन तुम उसके करीब ना जाना, और वलीमा भी 7 दिन बाद होगा। तुम समझदार हो बेटे, बीवी का लिहाज रखना। वजाहत ने माँ की बात सुनकर इस बात में सर हिला दिया था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खला रह गया था। एक नई बीवी, एक नई जिंदगी और ये पहला दिन। लेकिन सब कुछ वैसा ना हो सका जैसे वो बरसों सोचता आया था। उसने आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोला और हल्के कदमों से अंदर दाखिल हुआ। कमरे में महक बिखरी हुई थी, गुलाबों की खुशबू, लाल फूलों से सजा बेड, सफ़ेद पर्दे, सब कुछ दुल्हन की आमद की गवाही दे रहा था। मगर वजाहत की नज़रें बस एक जगह ठहर गई थी, बेड पर बैठी मलाइका पर। वो बहुत नाजुक, बहुत खामोश और किसी हद तक थकी हुई लग रही थी। वजाहत चंद लम्हे दरवाजे पर ही रुका रहा, जैसे अपने कदम रोककर खुद को कुछ समझा रहा हो। फिर आहिस्ता से कदम बढ़ाए और नरमी से बोला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मलाइका ने नज़रें झुकाए हुए धीरे से सर हिलाया, और वजाहत उसकी कमज़ोरी और खामोशी को महसूस करता हुआ एक कोने में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके दिल में इस वक्त कोई शिकवा नहीं था, ना कोई नाराज़गी, बस एक एहसास था, एहतराम का और इस नई ज़िंदगी को समझने का। वजाहत ने शुरू में ही यही सोचा था कि शायद उसे मलाइका से कुछ फासला रखना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए, ताकि वो खुद को इस नए रिश्ते में आसानी से डाल सके। लेकिन फिर दिल के किसी गोशे से एक नरमी भरी ख्याल उभरा कि हर रिश्ता जिस्मानी ताल्लुकात पर मबनी नहीं होता, और बीवी सिर्फ वो नहीं जो शोहर के साथ एक कमरे में रात गुजारे, बल्कि वो एक इंसान है, एक रूह है जिसकी इज्जत, एहसासात और जज्बात का ख्याल रखना असल जिम्मेदारी है। वो चाहता तो अपनी बीवी मर्जी थोप सकता था, लेकिन उसने मलाइका की झिझक, उसकी खामोशी और उसके लरजते वजूद में छुपी
बेबसी को समझा। उसे अंदाज़ा था कि मलाइका अपनी मर्ज़ी से शादी के लिए राज़ी नहीं हुई थी और उसका ये नया सफ़र उसके लिए कितना खौफ़नाक और नाआशना था। मलाइका एक शरीफ़ और बाहया लड़की थी, जो कभी किसी गैर मर्द से खुलकर बात भी नहीं करती थी। तो भला वो वजाहत से कैसे यकदम मायूस हो सकती थी? वो इस वक़्त कमरे के कोने में ख़ामोश बैठी थी ख़ामोश बैठी थी। आँखें झुकी हुई थीं, हाथों की उँगलियाँ एक-दूसरे में फँसी हुई थीं, जैसे खुद को सँभालने की कोशिश कर रही हो। वजाहत आहिस्ता कदमों से उसके करीब आया, बहुत नरमी से, बहुत धीरे से, ताकि उसे खौफ न हो, वो धड़कने न लगे। उसने आहिस्ता से मलाइका का हाथ अपने हाथों में लिया, उसकी निगाहों में निगाहें डालकर बोला, मलाइका, मैं तुमसे कुछ नहीं माँगता, बस तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी रज़ा, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हुई, तुम्हें मजबूर किया गया है, लेकिन मैं तुम पर कोई बोझ नहीं डालूँगा, तुमसे कोई तकाज़ा नहीं करूँगा। मैं तुम्हारी हर हद की इज़्ज़त करूँगा, तुम्हारे हर फ़ैसले की, हर एहसास की कदर करूँगा। बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, अपने दिल की बात कहो, अपनी ज़िंदगी जियो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, लेकिन पहले तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। ये घर तुम्हारा है, ये रिश्ता तुम्हारा है और तुम अपनी मर्ज़ी, अपनी रफ़्तार से उसमें कदम रख सकती हो। उसकी बातों में ऐसी नरमी, ऐसा मान और ऐसा एतबार था कि मलाइका की पलकों पर लरज़ती नमी भी थम गई थी। उसके दिल की दीवारों पर जैसे कोई दस्तक दी हो। बहुत धीरे से, मोहब्बत के लहजे में वजाहत ने उसकी झुकी आंखों को पढ़ा और आहिस्ता से उसके हाथ पर अपनी उंगलियों से तसल्ली भरा दबाव दिया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर खामोशी समझने को तैयार हूँ, बस तुम खुद को तन्हा मत समझना। और इस लम्हे मलाइका को पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये रिश्ता उसके लिए कैद नहीं, एक नरमी भरी छाँव भी हो सकता है, जो इसे वक्त के साथ कबूल भी हो जाएगा और शायद पसंद भी। उस रात उनके दरमियान खामोशी की वो दीवार गिर चुकी थी, जो दिन भर कमरे में छाई रही थी। अब दोनों एक ही पलंग पर एक दूसरे के सामने बैठे आहिस्ता आहिस्ता वो बातें कर रहे थे, जिनका आगाज़ एतमाद से हुआ था। वजाहत की आवाज़ में वो ठहराव था, जो सुनने वाले को बेख्तियार खींच ले। वो मलाइका को बता रहा था कि वो पायलट बन रहा है और उसकी ज़िंदगी का अंदाज़ बाकी लोगों से मुख्तलिफ है। मैं महीने में सिर्फ़ 10 दिन घर होता हूँ, बाकी वक़्त फ़िज़ाओं में होता हूँ, मुल्कों से गुज़रता हुआ, वक़्त की कैद से आज़ाद, आसमान की वसअतों में, मगर दिल हमेशा वहीं ठहरा रहता है जहाँ अपनों का गुमान हो। मलाइका खामोशी से उससे सुनती रही, पलकें झुकी हुई, लब हल्के से मुस्कुराए। कभी वो सर हिलाकर तायद कर देती, कभी नज़र उठाकर वजाहत को देख लेती और कभी सिर्फ उसके लहजे में छुपी सच्चाई को महसूस करके दिल ही दिल में नरम पड़ जाती। वजाहत की मौजूदगी, उसकी गुफ्तगू, उसका एहतराम और नरमी, सब कुछ ऐसा था जो मलाइका को अनजान सा लग रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसने ज़िंदगी में कभी किसी गैर मर्द से इतनी देर बात नहीं की थी, लेकिन वजाहत के साथ बात करते हुए उसे किसी भी लम्हे खौफ या गैर महसूस अजनबियत का एहसास न हुआ। कुछ ताल्लुक दिन से बनते हैं, बिना कोशिश किए। फिर वजाहत ने आहिस्ता से एक मखमली डिब्बा निकाला और उसे मलाइका की तरफ बढ़ाया, मुँह दिखाई के लिए। मुझे शुरू से ये ख्याल पसंद था कि मेरी बीवी के गले में नाजुक सा हीरे का लॉकेट हो, जैसे कोई खूबसूरत ख्वाब जो हकीकत में उतर आए। मलाइका ने लरजते हाथों से डिब्बा खोला और अंदर चमकता हुआ नफीस सा डायमंड सेट देखकर उसकी आंखों में हैरत की चमक उतर आई। वो कुछ लम्हे खामोश रही, जैसे यकीन न आ रहा हो कि ये सब कुछ उसके लिए है, उसके नाम है। उसका दिल जैसे शुक्र से लबरेज हो गया हो। आंखें नम हुईं, लेकिन वह मुस्कुरा दी, हल्की सी, धीमी सी, और इस लम्हे वो मुस्कुराहट वजाहत के दिल में उतर गई। मलाइका अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी कि उसका डर, उसका खौफ सब बेमायनी हो गया था। वजाहत उस जैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था। वो तो हर उस तस्वुर से बेहतर निकला जो उसने किसी भी मर्द के बारे में सुना या देखा था। देर रात तक वो यूनिवर्सिटी एक दूसरे से बातें करते रहे, ख्वाबों, ज़िंदगी, मुस्तकबिल, छोटी-छोटी खुशियों की। और फिर वो लम्हा आया जब लफ्ज़ थक गए, नींद आँखों पर मेहरबान हुई और दोनों एक दूसरे के हसाल में, बेखबरी में सुकून की गोद में सो गए, जैसे कोई तूफ़ान थम चुका हो, जैसे कोई नई शुरुआत हो चुकी हो। अगली सुबह जब मलाइका की आँख खुली, तो दिल अजब सी रोशनी से लबरेज था,
जैसे अंदर कोई बोझ उतर चुका हो, जैसे रात के लम्हात ने उसके दिल की सख्ती को नरम कर दिया हो। वो बिस्तर से उतरी, हल्का सा तैयार हुई, होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट थी, चेहरे पर सुकून। अभी वो आईने के सामने बाल समेट ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर दो भाभियां नाश्ता लिए खड़ी थी, मोहब्बत से अपनायत से लबरेज। आज मुकलावे की रस्म है मलाइका, तैयार हो जाओ, माँ बाप तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। उनके लहजे में प्यार भी था और रस्मों का रंग भी। उस रस्म के मुताबिक दुल्हन को निकाह के बाद 7 दिन के लिए मेके भेजा जाता था, ताकि वो दिल से इस रिश्ते को कबूल कर सके, माँ बाप की मोहब्बत में सांसें भर सके और अपने नए सफ़र की बुनियाद नरम यादों से रख सके। मलाइका नाश्ता करने नीचे आई। सब साथ बैठे हंसी खुशी बातें हुई। वजाहत के घर का माहौल खासा खुशगवार था। वहाँ मोहब्बत थी, इज्जत थी और सबसे बढ़कर अपनायत। उसके 2 देवर थे जो भी तालीम हासिल कर रहे थे, और 2 नंदे जिनकी शादियां हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी वजाहत के वालिद यानी उसके ससुर संभालते थे, जो एक बड़े के दिल के मालिक थे। उनका अंदाज नरम था, रवैया सरापा इज्जत, और हर बात में वो एक बाप जैसा मान देते थे। मलाइका को ये सब अच्छा लगने लगा था। एक ही रात में जैसे उसका दिल पलट गया हो, ज- जैसे ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही उसने वो सब पा लिया हो जिससे हमेशा डर कर आती थी। नाश्ता करने के बाद वो कुछ देर सबके साथ बैठी रही, फिर वापस कमरे में आई। जैसे वो अंदर ही दाखिल हुई, वजाहत ने एक लम्हे की भी मोहलत न दी, तेजी से बढ़ा और उसे नरमी से अपनी बाहों में खींच लिया। वो उसके सीने से जा लगी। धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। धड़कनों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वजाहत ने उसके बालों में चेहरा छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, जाने मन, आप 6 दिन के लिए जा रहे हैं। 7वें दिन आप खूब तैयार होकर आइएगा, नहा धोकर, वैक्स करके, जैसे कोई दुल्हन पहली रात के लिए खुद को संवारती है। उसकी बात में शरारत भी थी, मोहब्बत भी, और बेकरारी का इकरार भी। आपका मजाजी खुदा आपके लिए तड़प रहा है, कुछ हमारा भी ख्याल कीजिएगा। उसके माथे पर अपने लब रखकर मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोला। मलाइका की पलकें झुक गईं, चेहरे पर शर्म की लाली फैल गई। वो कुछ बोल ना सकी, सिर्फ नजरें चुरा गई। वजाहत की मोहब्बत, उसकी अपनायत, उसकी बातों में छुपी शौक़ी ने मलाइका के दिल में एक नरम सी ख्वाहिश भर दी थी, जैसे ये रिश्ता अब उसकी रूह को छू रहा हो। वो लम्हा, वो सुबह और वजाहत की आगोश, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था, मगर हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत। जल्द दोनों एक दूसरे की संगत में इस तरह गुम होते चले गए, जैसे 2 अधूरी सांसें मुकम्मल हो रही हों, जैसे वक्त थम गया हो और सिर्फ वो 2 ही रह गए हों, एक दूसरे की कुर्बत में, लम्स में, सांसों में। वो रात एक मामूली रात नहीं थी, वो एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा लम्हा जो उनके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो जाना था। मलाइका की पलकें बंद थी, चेहरे पर नरमी और खामोशी की वो लहर थी जो मुकम्मल तस्लीम की अलामत होती है। जबकि वह चाहत उसके करीब बैठा, उसके वजूद को अपनी बाहों में समेटे, धीरे धीरे उसे महसूस करा रहा था, जैसे कोई खूबसूरत नाजुक गुड़िया हो, जैसे टूटने के डर से आहिस्ता से थामे हुए हो। वो इसके रुखसार पर हाथ फेरते हुए मध्यम लहजे में बोला, तुम्हारा जिस्म तुम्हारी तरह खूबसूरत है, जैसे किसी ख्वाब को छू रहा हूँ, जैसे कोई गुड़िया मेरे पहलू में हो। मलाइका ने शर्माकर आंखें बंद कर ली, मगर उसके लबों पर एक कबूलियत की खामोश मुस्कुराहट थी। वजाहत ने उसकी सांसों की रवानी को अपने अंदर महसूस किया और मज़ीद करीब होकर सरगोशी की। आज की रात सिर्फ हमारी है, सिर्फ तुम्हारी और मेरी। कमरा मोमबत्तियों की रोशनी में नहा रहा था। हवा में मोहब्बत और एतमाद की महक थी, और हर लम्हा उनकी रिश्ते की बुनियाद मजबूत कर रहा था। वो एक दूसरे के वजूद में मदम होते जा रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, नरमी से बेआवाज़ अंदाज में। वो रात जिस्म से ज़्यादा रूहों के मिलाप की रात थी, एक खूबसूरत एहसास, एक मुकम्मल कबूलियत, और 2 दिलों का ऐसा मिलाप जो वक्त के हर मौसम में साथ निभाने का वादा कर रहा था। खुल्दों की तरह वो एक दूसरे में ऐसे गुम हो गए कि अलैदगी का तसव्वुर भी मुमकिन न रहा। वो रात मोहब्बत का पहला मुकम्मल कदम थी, एक ऐसी शुरुआत जो हर दिन को ख़ास बनाती है।